کہ معلم کائنات نے ہمیں درس دیا کہ ہر چیز عملی طور پر کر کے دکھایا جائے، اور حضور نے عملاً ہر کام کو کر کے زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہا کہ جنگ بدر ہو رہا ہے، جاؤ جنگ بدر فتح کر لو، جاؤ میرے مجاہدوں اور لڑ کر آ جاؤ۔ حضور نے خود کمر باندھا ہے، خود گئے ہیں جنگ بدر کے اندر، خود تلوار اٹھائی ہے اور صحابہ کے ساتھ لڑے، خود خندق کھودا ہے حضور نے، خود مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے جو ہے وہ اٹھائے ہیں پتھروں کو اور گاروں کو، اور لے جا کر کے مسجد قباء کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ سے جو ہے وہ قومیں نہیں بنتی ہے، یہ قومیں جو ہے وجود میں آتی ہے کہ جب لیڈر ہو ایسا کہ اپنے ساتھ میں لوگوں کو لے کر ساتھ میں چلے، خود بھی کام کرے، خود بستر پر سوتا رہے اور لوگوں سے کہے تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، اس کے اندر موٹیویشن نہیں آئے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ تم خود آگے بڑھو، کام کرو، رستے اٹھاؤ، تب دوسرے پکڑ کر اسے کھینچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا ينبغي بجلال وجهه وعظیم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الہ الحق ورب العالمین واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین طٰہٰ اور یاسین جناب رحمت للعالمین راحت العاشقین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کونین کے والی خسرو طوبیٰ سیاح لامکاں مالک ہفتہ سما، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا مولا ملجا کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و احترام کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، سو رہے ہیں اور آگے آ جائیں، تھوڑا پیچھے آنے والے پورے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آگے تشریف لے آئیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے دنیا یہ جن کی خاطر وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، بنی ہے دنیا یہ جن کی خاطر وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ اور نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، نبی کا بچپن تھا کیا سلونا کہ چاند تھا آپ کا کھلونا، کبھی کھلونے کو توڑتے ہیں، کبھی وہ ٹکڑے ملا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں بے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کچھ آ رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں۔ اور وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، حضور کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں۔
शायर कहता है कि वस्फ क्या लिखे कोई उस महबत अनवार का, महरो माह में जलवा है जिस चांद से रुखसार का, और अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, और बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए। हुजूर की मदह अगर करने बैठे हम, तारीफ करने बैठे, तो दुनिया के जितने दरख्त हैं उन सबको कलम बना दिया जाए। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए, और जितने भी समंदर हैं सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम, चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए। हुजूर की तारीफ और तौसीफ हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ फरमाई, और जब जब जिस मकाम पर भी दुनिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान को घटाने की कोशिश की, जब सिलसिला नुज़ूल कुरान चालू था, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आयत नाजिल की। दुनिया के किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा नहीं किया, खुद खालिक कायनात ने दिफा किया है अपने हबीब का। आज अगर कोई कहता है कि हम सीरत के जलसे नहीं करते, ये तुम्हारा मुकद्दर ही नहीं है, तुम्हारा नसीब ही नहीं है, तुम्हारे नसीबे की बात ही नहीं है कि तुम रसूलुल्लाह का जिक्र करो। ये तो किस्मत की बात है कि हम सुन्नियों के नसीबे में ये लिखी गई कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। नाज करें अपनी किस्मत पर, अपने नसीबे पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने, और कितने ही सजदे शुक्र हम पर अभी भी बाकी है, कितने सजदे शुक्र हम पर बाकी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया, और इस दुनिया में हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। चाहता तो जर्रा बनाता, कतरा बनाता। हम अदम में थे, हमें वजूद में लाया। हम नहीं थे, हमें हाँ किया। हम नीस्त थे, हमें हस्त किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो ये वजूद बख्शा है, इस वजूद पर भी एक सजदे शुक्र तो बाकी है। ये जो हम सजदे कर रहे हैं नमाज के हुक्मी, लेकिन ये शुक्राने का सजदा कि अल्लाह ने हमें बनाया है मखलूक और अशरफुल मखलूकात बनाया, इस पर एक सजदा शुक्र तो बाकी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मखलूक बनाने के साथ साथ हमें सिर्फ मखलूक ऐसा नहीं बनाया, अशरफुल मखलूकात चाहता तो मुशरिक बनाता, काफिर बनाता, मजूसी बनाता, दहरिया बनाता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले ईमान में पैदा किया और ईमान वाला बनाया। इस पर भी एक सजदा शुक्र हमारे लिए बनता है कि हम मखलूक होने पर अशरफुल मखलूकात में से सजदा करें। अल्लाह के मौला, तेरा शुक्र है कि दोनों अशरफुल मखलूकात बना, तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया। और इस पर भी एक सजदा शुक्र बनता है। तो चाहता तो किसी की उम्मत में पैदा करता, लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत में पैदा किया है। इस पर भी हमारे लिए एक सजदा शुक्र बनता है कि हम सजदा शुक्र करें कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश जाहिर करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा इस उम्मत को, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज किया, मौला ताला ये उम्मत मुझे दे दे। कहा नहीं मूसा, ये उम्मत मेरे हबीब की है। और जब फजीलतें देखी अपने हबीब की उम्मत की, तो कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये उम्मत मुझे नहीं दे सकता मौला, तो मुझे ही उनका उम्मती बना। अरे नाज करो नाज कि वो जलीलुल कद्र नबी जो कलीमुल्लाह है, तौर पर जाकर अल्लाह से कलाम करता है। और तुम्हें अपने नसीबे पर नाज करना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए। हम जितना सजदा शुक्र करें वो कम है कि हमने मांगा नहीं, और ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ने हमें दिया। मूसा मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिला। नहीं, हमें अपनी कदर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदके में हमें क्या कुछ दिया है, और ये अजमत व शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को अता फरमाया कि जब कोई बात होती
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضور کی بارگاہ میں لوگوں نے کسی نے بلند آواز سے بات کی. اب ادب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کہ جب رسول کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہیں بلند آواز سے بات نہیں کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. ان تحبط اعمالکم، اگر تم بلند کرو گے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ایک خلیفہ گزرا، عباسی خلیفہ، ابو منصور غالباً اس کا نام تھا، امام مالک کے زمانے کے اندر. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حضور کی ظاہری زندگی کی بات ہے، یہ ظاہری زندگی میں حضور کے لیے یہ حکم تھا لوگوں کے لیے. لیکن وہ خلیفہ جب مسجد نبوی کے اندر آیا، امام مالک وہاں پر موجود تھے اور اس نے بلند آواز سے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا. امام مالک نے ڈانٹا اسے کہ تو جانتا ہے تو کس مقام پر ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے، اس کا ادب ملحوظ رکھ اور اپنی زبان تھوڑی نیچی رکھ، اپنی آواز اپنی صوت کو جو ہے وہ نیچے کر کے بات کر. امام مالک نے ادب سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب نبی کی آواز سے آواز بلند نہیں کر سکتے. یہودی آتے تھے حضور کے پاس جب مدینہ المنورہ کے اندر ابتدائی زمانہ تھا، تو حلقہ جب لگتا تو یہودی بھی آ کر بیٹھتے تھے. اس وقت یہودیوں سے اپنی دشمنی نہیں ہوئی تھی، تو جب یہودی بیٹھتے تو ایک لفظ کا استعمال کرتے تھے، رائنا کا. اور رائنا جو ہے اس وقت وہ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی چرواہے کا ہوتا تھا. اور حضور جب کچھ ارشاد فرماتے کچھ تو صحابہ کرام ان میں سے رائنا کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے. یا رسول اللہ ہم سن نہیں پائے، یعنی ہم پر رعایت کریں. اب توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن یہودی جو تھے وہ اس معنی میں نہیں، بلکہ یہودیوں کی لغت میں کچھ اور اس کا معنی تھا، چرواہا کا معنی تھا، اور وہ تمسخر کے طور پر اس لفظ کا استعمال کرتے تھے. بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے کہ ایک لفظ جو ذو معنی لفظ ہے وہ دو معنی رکھتا ہے، دونوں احتمال ہے کہ یہ بھی مطلب ہے یہ بھی مطلب ہے، لیکن اس میں اگر ایک منفی پہلو پایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ کے استعمال سے بھی منع فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں آنا بارگاہ میں تو رائنا نہ کہنا، وقول انظرنا، جب تم کچھ سن نہ پاؤ اور رسول اللہ سے کہنا ہو یا رسول اللہ ہم سن نہیں پائے، دوبارہ سے ارشاد فرمائے تو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرنا، انظرنا کا لفظ استعمال کرنا. یہ لفظ بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور کا مقام کیا ہے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. یہ جو فرمایا گیا بڑا گہرا شعر ہے. یہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. اب یہاں پر وہ حدیث حضرت جابر کی یاد آتی ہے. حضرت جابر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر کہ اس سوال پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے، سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا اپنے نور سے. اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو شعر ہے کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. اس کی تشریح میں آئے تو شاید بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی جائے گی اور بات آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ڈیپ جسے کہہ سکتے ہیں بہت گہری بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہم اور آپ جتنا بھی حضور کی تعریف کریں عشر عشیر ادا نہیں کر سکتے. ہم بیٹھتے ہیں یہ اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے کہ حضور کی ہم تعریف کریں گے تو ہمارا مقدر چمکے گا. اور یہ میں نہیں کہتا،
یہ سنی جامع مسجد کے ایک چھوٹے سے مسجد کا چھوٹے امام کا قول نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور وہ روتے رہے برسوں برس، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، جب وسیلہ دیا ہے اس نے محمد کا کہ اے اللہ تجھے واسطہ پیارے محمد کا میری دعا کو قبول کر لے، جو سینکڑوں سال جو دعا قبول اور توبہ قبول نہ ہوئی تھی، اس آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے رسول اللہ کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کہاں دیکھا؟ کہا یا اللہ میں نے دیکھا تھا باری تعالیٰ کہ عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں سمجھ گیا ضرور یہ تیرا مقرب بندہ ہے. تو اب بات اتنی یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنے دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں یاد آئی یہ بات؟ ابتدا میں ہی مانگ لیتے. تو حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی اللہ کی مرضی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سینکڑوں برس آدم اگر توبہ کرے اور اس کے بعد سینکڑوں برس کے بعد وسیلہ محمد سے دعا کرے تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی جو بھی پہاڑ سے لگتی ہے تو رسول اللہ کے صدقے میں لگتی ہے. یہ ہم اور آپ رسول اللہ کی امت ہیں، اور امت جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اس امت کے ہونے کا حق ادا کریں، اور ہمیں خیر امت کا تاج دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا گیا قرآن میں کہ ہم نے تمہیں لوگوں میں سے جو ہے بہترین امت کا تاج تمہارے سر پر رکھا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ کیا کریں گے؟ برائی سے روکیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے. بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ بہترین امت اس لیے ہے کیونکہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. لیکن آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ تھوڑی سی اصلاحی گفتگو بھی ضروری ہے. اور ایک جو میں نے پوائنٹ ابتدا میں کہی تھی کہ آج 5 ستمبر ہے، ٹیچرز ڈے ہے، اور حضور معلم کائنات بن کر بھی تشریف لائی. یہ بھی ایک دیکھیے مماثلت ہے کہ 5 ستمبر کو یوم اساتذہ ہے اور 5 ستمبر کو یوم میلاد النبی ہے، اور حضور کی زندگی کا ایک پہلو معلم کائنات ہونا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی ہے صحابہ کی. تربیت ہر مقام پر جو ہے حضور تربیت فرماتے. گھر کے اندر ہوتے گھر میں تربیت فرماتے، بازار میں جاتے تو اعلان فرماتے یا معاشر التجار، اے تاجروں کی گروہ. اب تمام تاجر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، متوجہ ہو گئے کہ رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجر جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو جھوٹ نہ بولے، کم نہ تولے اور ایمانداری کے ساتھ جو تجارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو جب بازار میں ہے تو بازار میں سبق دیا اللہ کے رسول نے، کردار سازی کی ہے. اور ایسا معلم آج دنیا کے جتنے بھی ٹیچر ہو اور جتنے بھی معلم ہو، جتنے بھی استاد ہو، وہ سب استاد حضور کی ذات پر قربان ہے کہ انہوں نے آج جو دنیا کہتی ہے کہ ہمارا بچہ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھو، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کوالٹی کو بلڈ کرو. اگر بچہ سائنس لینا چاہتا ہے سائنس دو، کامرس لینا چاہتا ہے کامرس دو. وہ اگر آرٹسٹ بننا چاہتا ہے اور فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے اور الگ الگ فیلڈ کے اندر اگر جا کر وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو پکڑ کر اس نیش کے اوپر اسے کام کرنے کے لیے لگاؤ گے تو وہ آگے چل کر بڑا ماہر اور بڑا کامیاب شخص بنے گا. یہ لوگ کہتے ہیں اور دربار رسالت میں اور دنیا کے سارے معلموں کو چیلنج ہے. اور یوم اساتذہ پر آج یہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اندر وہ صداقت دیکھی تو صدیق اکبر بنایا اور صداقت کا تاجدار بن گیا. ایک نیش آج دنیا اگر سچ کے بارے میں جانتی سنتی ہے اور صدیق اکبر کسے کہا جاتا ہے تو آپ کی زبان پر سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے کہ سب سے بڑے اگر کوئی سچے ہیں تو صدیق اکبر ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کردار ساز ہیں. آج ہمیں بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ سنوارنے کی ضرورت ہے
किरदार साजी की जरूरत है। इसलिए आज का तो हमारा माहौल थोड़ा डिफरेंट हो गया, और डिफरेंट इस तरीके से है कि आज 3 साल 4 साल के बच्चों को जो है वो प्री स्कूलिंग कराई जा रही है। वो खेलने के लिए स्कूल बना लिए गए हैं, वहां बच्चा पढ़ता नहीं खेलता है। 3 साल में बच्चों की एडमिशन, ये पीठ के ऊपर एक भारी बोझ जो है वो लाद दिया गया है, और वो जो जिसे बच्चा कैरी नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता है, वो लेकर 4 साल की उम्र में जा रहा है। लेकिन यही तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर एक जापान मुल्क है जो 12 साल तक भी बच्चों को अपने जो है वो तरबियत सिखला रही है। और इस्लाम क्या कहता है कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे नमाज के लिए लेकर जाओ, और 10 साल का हो जाए तो तादीबन उसे आप मार सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, और उसे सिखाया जाए। इसलिए कि 10 to 12 ये 10 से 12 साल तक ही वो बच्चा है जिसके अंदर तहजीब अगर उतारनी है तो उतर जाएगा, सकाफत उतारनी है उतर जाएगा, अदब सिखाना है सीख लेगा, और अगर ताजीम सिखाना है सीख लेगा, इसके रसूल दिल के अंदर डालनी है वो 10-12 के अंदर डाल लेगा। नमाज की मोहब्बत डालनी है 10-12 के अंदर डालिए। अब अगर 12 के बाद आप निकले हैं अपने बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चों को संवारने के लिए, तो भूल जाइए कि वो बच्चा जो है वो सुधरने और संवरने वाला है। तालीम का आगाज जब जहन मैच्योर होता है, जहन इल्म को लेने के लिए तैयार होता है, तब इस्लाम भी तालीम की जो है वो ऐसी कोशिश करता है कि कहता है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना, इल्म दीन नहीं, इस हदीस के अंदर इल्म दीन का लफ्ज नहीं है, और इस्लाम दुनियावी इल्म का मुखालिफ भी नहीं है। हजरत सलमान फारसी ने जब खंदक खोदने का जो है मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, हमारे फारस में जब जंग होता है तो खंदक खोदी जाती है जिससे दुश्मनों को दूर रखा जाता है, तो क्या रसूलुल्लाह ने ये कहा नहीं, ये दीन, ये इल्म हम नहीं लेंगे, ये बाहर का इल्म है, ये मजूसियों का इल्म है, ये गैरों का इल्म है, जो फायदा दे और इस्लामी शरीयत के अंदर कोई फसाद और बिगाड़ पैदा न करे, वो सब इल्म दीनी इल्म है। तो हम अपने बच्चों को आज 4-4 साल में, 5-5 साल में स्कूल भेज रहे हैं, और जापान तरक्की याफ्ता देश है, वो क्या कर रहा है, 8-9 साल तक बच्चों को तहजीब सिखला रहा है कि बड़ों से बात कैसे करना है, बड़ों की ताजीम कैसे करनी है, उस्ताद की ताजीम कैसे करनी है, माँ बाप का क्या मकाम और मर्तबा है। को पैसेंजर अगर आपके साथ बैठा है, ट्रेन में अगर सफर कर रहे हैं, तो को पैसेंजर आपके साथ है तो उसके साथ व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए। रास्ते में चल रहे हैं, कोई रास्ते में आपका साथी हो गया, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब इस्लाम सिखलाता है। लेकिन इन्हें गैरों ने अडॉप्ट किया, लेकिन हमने जो है अपनी जिंदगी से इन तमाम चीजों को निकाल दिया। ये तालीम दी जा रही है 10 साल 12 साल तक, उसके बाद स्कूलिंग शुरू हो रही है। हम बच्चों को बच्चे से जहन डेवलप नहीं हुआ, एक तरफ लेकर जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दर्श दिया, 7 साल में बच्चों को लेकर आओ। अब जब बच्चा 7 साल में आएगा मस्जिद में, तो एटमॉस्फेयर जो होगा उसे उसके दिल के अंदर नमाज पढ़ता देखेगा, तो उसके दिल में वो क्यूरियोसिटी जागेगी कि बच्चों को देखें घर के अंदर अगर माँ नमाजी है, अगर बाप नमाजी है, तो मैंने अपने आंखों से मुशाहिदा किया है, ये गैर की बात नहीं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, कि माँ जब नमाज पढ़ती है तो एक छोटी सी नन्ही सी 3 साल की बच्ची वो जाकर मुसल्ले के बगल में वो टूटे फूटे सजदे वो भी करती है। उसे नहीं पता सजदे का, उसे नहीं वाजिबात नमाज पढ़ा, इसे नमाज पता, वो माँ को देखकर अमल कर रही है। अभी एक इल्म का एक नया वर्जन आया है जो अमली तौर पर इल्म सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। एक होता है जबान से कह के बता देना, लेकिन एक अमली तौर पर इल्म सिखाना होता है कि आप फिजिकली एक्टिविटी के साथ आप इल्म सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए ये नहीं कहा रुको ऐसे करो, सज्जा ऐसे करो, फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और सहाबा भी जब आगे जाते और उनसे जब पूछा जाता कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो वो नहीं कहते कि सज्जा ऐसे करना है, रुकू ऐसे करना, कहता आओ दिखाओ कि रसूलुल्लाह नमाज कैसे पढ़ते थे। अब वो हुजूर की जो नकल थी, जैसे हुजूर नमाज पढ़ते, प्रैक्टिकली करके उसे दिखाते थे। तो ये प्रैक्टिकली जो बात की जाती है अमली तौर पर, फिजिकल जो है मिलावट के साथ जिस्मानी तौर पर अगर वो किया जा रहा है,
तो उसमें क्या है, बच्चों को सीखने और समझने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बच्चा छोटा है, वो सीखता है, वो माँ बाप को देख रहा है नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ रहा है, घर के सारे लोग रोजा रखते हैं, बच्चा जिद करता है कि मैं रोजा रखूंगा। और कितने ही रोजेदार बच्चों के आपने किससे जो है वो कहानियां सुन रखे होंगे। वो भी जिद होता है कि ये क्यों, ये एटमोस्फेयर है, ये सोहबत का असर है, ये गिरदो नवाह के माहौल का असर है कि आप जिस तरीके के माहौल को डेवलप करते हैं, आपके इर्दो गिर्द में पढ़ने वाला बच्चा उसी के हिसाब से वो बड़ा होता है और वही कुछ सीखता है। आज हमारे अशोक नगर से बहुत सारे लोग यहां से निकल रहे हैं घर बेचकर, घर को खाली करके कहां जा रहे हैं, जाता हूं कहीं बेहतरीन ऐसे सोसाइटी में जहां अमीर लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल अच्छा है। माहौल का कितना असर है, माहौल अच्छा है। यहां क्या है, बच्चे रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक क्या कर रहे हैं, रात के अंदर वो शराब के नशे में नशे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और कोई जो है वो किरदार साजी नहीं हो रहे। अब ऐसे माहौल में जब एक अच्छे घर का बच्चा होगा और 10 ऐसे होंगे तो वो कहां जाएगा। ये नेचर है कि जो बंदा जिस एज का होता है उस एज ग्रुप के लोगों को ही सिलेक्ट करता है अपनी फ्रेंडशिप के लिए। कोई 10 साल का बच्चा कोई 20 साल के नौजवान से दोस्ती नहीं करेगा, कोई 20 साल का नौजवान 50 साल के बूढ़े के साथ नहीं घूमेगा, बल्कि वो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ ही घूमेगा। और जब इसका एज ग्रुप एक गलत चीजों में लगा हुआ है तो वो किसके साथ जाएगा। तो मुअल्लिम कायनात ने हमें दर्श दिया कि हर चीज अमली तौर पर करके दिखाया जाए, और हुजूर ने अमलन हर काम को करके जबान से कहने के साथ साथ अमली तौर पर करके दिखाया। ये नहीं कहा कि जंगे बद्र हो रहा है, जाओ जंगे बद्र फतेह कर लो, जाओ मेरे मुजाहिदों और लड़कर आ जाओ। हुजूर ने खुद कमर बांधा है, खुद गए हैं जंगे बद्र के अंदर, खुद तलवार उठाई है और सहाबा के साथ लड़े, खुद खंदक खोदा है हुजूर ने, खुद मस्जिद कुबा की तामीर में आपने जो है वो उठाए हैं पत्थरों को और गारों को और ले जाकर के मस्जिद कुबा की तामीर में आपने हिस्सा लिया है। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से जो है वो कौमें नहीं बनती है, ये कौमें जो है वजूद में आती है कि जब लीडर हो ऐसा कि अपने साथ में लोगों को लेकर साथ में चले, खुद भी काम करे, खुद बिस्तर पर सोता रहे और लोगों से कहे तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, वो काम नहीं करेगा। तुम खुद आगे बढ़ो, काम करो, रस्ते उठाओ, तब दूसरे पकड़ कर उसे खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमने रसूलुल्लाह की जात को सिर्फ जो है क्या समझा, सिर्फ नारा लगाना, नारा लगाकर हम चले जाते हैं रसूलुल्लाह के नाम पर, लेकिन हुजूर की जिंदगी से कुछ सीखने की हम कोशिश नहीं करते हैं। कुरान ने ऐलान कर दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये तो ऐलान किया कि एहसान किया मोमिनों पर, और रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। हर रील के ऊपर अपने मूड को चेंज करने वाले बच्चे, हर रील के ऊपर उनकी तवज्जो भटक जाती है, उनका मिशन डगमगा जाता है। ऐसा कमजोर ईमान मत रखो, ऐसा कमजोर ईमान नहीं रखो, ईमान पुख्ता और मजबूत रखो और मुतसल्लिब बनकर दीन इस्लाम पर कायम रहो कि अगर जलजला भी आ जाए तो तुम्हारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। गले पर छुरी रख दी जाए तब भी जबान से कलमा तैयबा निकलना चाहिए। आज हमारे ईमान की कमजोरी का ही तो नतीजा है कि आज हम मारे सताए जा रहे हैं, धुतकारे जा रहे हैं, हर शोबे से निकाले जा रहे हैं, राह चलना दुश्वार हो गया मुसलमानों का। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों है तो करते हैं गुलामी। क्यों? ये वजह है कि हमारी बदअमालियां है। रसूलुल्लाह की जात को हमने न पढ़ा, न समझा, न मुहसिन इंसानियत की जात को हमने पढ़ने की, सीखने की और उनसे समझने की कोशिश की कि हुजूर ने जिंदगी कैसे गुजारी। सबसे अच्छा शौहर देखना है तो किसी और किताब में नहीं, सीरत रसूल के अंदर देखिए। हुजूर ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और मैं सबसे अच्छा हूं अपने घर वालों के साथ। हजरत अनस फरमाते हैं मैं 10 साल तक हुजूर की जो है वो बारगाह में खिदमत रहा, हुजूर ने उफ तक नहीं कहा मुझे,
कोई अपने खादिम और गुलाम को मारता है पीटता, माँ बाप को लोग मार रहे हैं, भाई भाई कत्ल गारत पर आमादा है। रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, चौखट पे रहने वाले, सब रोज पहरा देने वाले। वो हजरत अनस फरमाते हैं 10 साल तक मैं रहा गुलामी में हुजूर के, हुजूर ने उफ तक नहीं कहा मुझे, और रसूलुल्लाह ने अपनी किसी ज़ौजा के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया। आप देखें, अगर बाप बनना है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़िए, बेहतरीन बाप, बेहतरीन फादर बनना है तो हुजूर की जिंदगी को पढ़िए कि हुजूर ने कैसे बाप होने का फर्ज अदा किया। बेहतरीन शौहर बनना है तो हुजूर के गोशे जिंदगी को पढ़िए कि एक शौहर कैसा होगा। बेहतरीन लीडर बनना है तो हुजूर की गोशे जिंदगी को पढ़िए कि बेहतरीन लीडर कैसा होता है। अगर आप टीचर है तो हुजूर की जिंदगी को पढ़िए कि बेहतरीन मौलिम कैसा होता है, कि जो सिद्दीक अकबर को देखे तो सदाकत का ताजदार बना दे, उमर फारूक को जो है अदालत का ताजदार बना दे, कि उनके अंदर आदमी की खूबी थी, उन्हें अदालत का शहसवार बनाया हुजूर ने, वो किरदार साजी की है। हजरत उस्मान गनी सखावत के ऐसे अलमबरदार बन के नहीं चमके हैं, मौलाए कायनात शुजाअत के अलमबरदार बन के चमके हैं। और हर जिनके अंदर जो खूबी थी, किसी को किताबत के लिए दिया गया और किसी को, एक सहाबी हजरत जैद को तो दूसरे मुल्क में भेजा गया कि वहां जाकर उनकी जबान सीख कर आ पाए। तो हुजूर ने इल्म पर तवज्जो दी, सीखने सिखाने पर तवज्जो दी। और जंगे बद्र के अंदर जो कुफ्फार जो कैद होकर आए थे, उन्हें कहा गया फिदिया देकर तुम जो है वो रिहाई हासिल कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, मालो मता नहीं था, वो फिदिया नहीं दे सकते थे, उन्हें मुकर्रर किया कि तुम मदीने के 10-10 बच्चों को पढ़ाओ। इल्म कहां है हमारा? इल्म से शगफ क्या है हमारा? हम कितने जो है वो इल्म के लिए उतावले हैं, दीन का इल्म नहीं आता है। कब सोचा है कि लाओ अभी जिंदगी की रमक बाकी है, थोड़ा पढ़ लेता हूं। वो कलाम, वो कुरान मजीद जो अल्लाह का कलाम है, दुनिया में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे फरमाया है, वो कलाम पढ़ने के लिए हमें अरबी नहीं आती है। चलो हमारे मस्जिद के अंदर इमाम साहब है, मौजिन साहब है, नायब इमाम साहब, वो पढ़ाते हैं, मौका लेंगे तो हम कुरान पाक ही पढ़ ले। लेकिन इल्म, ना हम दीन पढ़ रहे हैं ना हम दुनिया पढ़ रहे हैं। अगर दुनिया भी पढ़ते हैं ना तो भी हुकूमत करते। लेकिन अलमिया ये है हमारा, अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये ना हम दीन पढ़ रहे हैं ना दुनिया पढ़ रहे हैं। दुनिया भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि दीन को हमने छोड़ा कि दुनिया के अंदर बड़े जो है वो काबिल बन गए। 8वीं 10वीं पढ़ने के बाद बच्चा कहां जा रहा है मुझे अच्छी तरीके से मालूम। मिडिल क्लास के बच्चे कहां जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए इंतजाम नहीं है। बहुत सारे वेलफेयर सोसाइटीज है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं लोग बच्चों को, मुसलमान बच्चों को, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। हुजूर मुअल्लिम कायनात बनकर आए और पहली वही जो नाजिल हुई है वो क्या है? वो अकीदे के मुतालिक नहीं था, वो तबलीग के मुतालिक नहीं था, बल्कि पहली वही आई तो इकरा 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 बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आए महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। सबसे पहली वही वो इकरा आई, और जो कौम पढ़ने के लिए पहली वही आई है वो कौम तालीम में सबसे पीछे, सबसे पसमानदा। आज मुसलमानों के इलाकों का जायजा लेना है आपको, तो जहां मुसलमान बसते हैं, जहां पर अक्सरियत है, मेजोरिटी है मुसलमानों की, वहां जाएं। एक जमाना होता था कि लाइब्रेरियां होती थी, आज मुसलमानों के इलाके में क्या खुलते जा रहे? होटल कसरत के साथ खुल रहे, होटल कसरत के साथ खुल रहे, कबाब, तंदूरी, बिरयानी, कोफ्ता और क्या आइटम चाहिए आपको वो सब मिलेगा वो मुसलमानों के इलाके में। लाइब्रेरी गायब, स्कूल गायब, होटल खुल रहे हैं। मुसलमान क्या सबसे ज्यादा भूखा है? जिस कौम को, जिसके कौम के नबी ने कहा कि तुम जब खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में खाना, एक में पानी और एक हवा के लिए खाली रखो। वो कौम 3 हिस्से क्या, वो 4 हिस्से करके चारों में डाल देती है खाना। एक लतीफा मुझे जो याद आ रहा, सुनाऊं? सुनेंगे? एक शख्स जो है वो डॉक्टर के पास गया, कहीं दावत में गया, उसके बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, खाना ज्यादा खा लिया था इसलिए मेरी तबीयत खराब है, कोई गोली जो है कुछ कीजिए मेरा। तो डॉक्टर ने जो है एक गोली दी, कहा इसे खा लो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने कहा अगर इतनी जगह होती तो एक बोटी और ना खा लेता। तो ये हाल है कौम मुस्लिम का। अरे खाना भाई शादी में 5 रंग का 15 रंग का है, वो साहिबे
साहिबे खाना ने वो खाना बनाया है, साहिबे खाना ने वो खाना बनाया है, खाना उनका है भाई, पेट तो हमारा है। अब सबको चखना जरूरी है कि पनीर भी लाओ, टिक्का भी लाओ, मुसल्लम भी लाओ, ये भी चखाओ, ये भी चखाओ, ये भी चखाओ, सबको खाएंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद कहेंगे पेट थोड़ा गड़बड़ लगेगा। अरे गड़बड़ लगेगा नहीं, अंदर जाके सब लड़ रहा है, पनीर जो है वो चिकन से लड़ रहा है, वो छोला जो है वो पूरी से लड़ रहा है, बिरयानी चावल से लड़ रहा है, तो वो क्या होगा अंदर, मामला तो खराब होना ही होना। और एक बात अपने लिए मैं अर्ज करता हूं कि थोड़ा हम पर भी रहम किया करे, दया कीजिए। ये दया ये करिए कि दावत में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहुत मोहब्बत है, और उलमा से मोहब्बत करनी भी चाहिए। खैर हम तो उस लायक नहीं है कि हमसे मोहब्बत की जाए, जर्रे नाचीज कुछ भी नहीं हम लोग, लेकिन लोग घर में दावत देते हैं और फिर उसके बाद जो भाई दो चार मार दे आदमी तो उतनी तकलीफ ना हो। जो चम्मच से उठा उठा के मेरे तरफ से थोड़ा सा लीजिए, इनके तरफ से थोड़ा सा लीजिए, हजरत बस 2 बोटी 1 बोटी, जब हमने इसरार किया कि जगह नहीं है बस इतना सा खा लीजिए, ठीक है आपके लिए खा ले, हमको नमाज भी पढ़ा, नमाज के अंदर डिकार आती है, कभी कभी सांस फूल रही है, कभी सांस नहीं चल रही, क्या मसला? मसला यही है कि खाना यहाँ तक आ गया है और मजबूरन ना खाओ तो फिर बुरा मान जाते हैं। तो ये चीज, ये पैगाम सबको पहुंचा दीजिए, खिलाइए, लेकिन उनको अपनी मर्जी से खाने दीजिए। हक पूछना भी जरूरी है, और ऐसा नहीं है मौलाना लोग खा ही लेते हैं अपना पेट भर का, वो जितना खाना होता है उतना खा ही लेते हैं, तो उतना टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला भी रहता है कि कैसे खाना है। तो खाने के ताल्लुक से आप थोड़ा सा बेदार हो जाए, ये तो एक बेदारी के लिए आपको मैंने सुना दिया, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। खाने के ताल्लुक से हमें बेदार मग़ज़ और बाडी होने की जरूरत है। मदीने में एक तबीब आया था, बात आई तो अर्ज कर देता हूं, मुफ्ती साहब तवज्जो चाहता हूं। मदीने में हुजूर के जमाने में एक तबीब आया, और आज देखते हैं ये गाड़ी लेके पोस्टर लेके उधर खड़े रहते हैं, रोड के किनारे लगाते हैं। तो तबीब आया, उसने भी अपना बढ़िया बिस्तरा बिछाया, बिछाने के बाद 1 दिन 2 दिन कई दिन गुजर गए, कोई मरीज आया ही नहीं। तो लोगों से पूछा उसने कि यहाँ कोई मरीज नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता? तो लोगों ने, पता है ये बहुत ही भारी और बहुत ही बड़ी बात कहने लगा हूं, सुन ले आप इसको और जहन में रखें। डॉक्टर को बहुत सारा फीस आप बचा सकते हैं, डॉक्टर को बेरोजगार कर सकते हैं कहा जाए तो। आप मदीने के उस तबीब को लोगों ने कहा कि बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं, तो फॉर्मूला लेकर जाइए आज सीरत नबी के जलसे से। लोगों ने कहा कि हम खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है, और भूख बाकी रहते ही दस्तरखान छोड़ देते हैं, और हम खाना तब खाते हैं कि जब खाना यहां तक भरा रहता है, और उसके बाद फिर दोबारा खाते हैं, फिर दोबारा खाते हैं। रास्ते में गए तो चिकन रोल खा लिया, आगे बढ़े शोरमा खा लिया, आगे बढ़े जो है वो मटका चौक पर पहुंचे तो चाय पी लिया, और थोड़ा आगे बढ़े कबाब पाव खा लिया, और जैसे जैसे बढ़ते गए जो जो मिलता गया, लाओ थोड़ा यहाँ पर फालूदा लगा हुआ है इसको भी पी लिया जाए। तो ऐसा जो है ये डाइटिंग सिस्टम ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप खाइए, लेकिन उसकी एक मिकदार जो है वो मुअय्यन कीजिए कि हमको कब कितना खाना है। और खाने का एक बड़ा ही बेहतरीन जो है वो तरीका अतिब्बा ने फरमाया है, और ये इस्लाम में भी है कि खाने के 3 हिस्से किए जाए। खाने के सुबह का जो खाना है उसे आप भारी रखिए, लाइक अ किंग, बादशाह की तरह कहते हैं कि सुबह का खाना आप दबा के खाइए। काम पे जाना है, काम पे जाने का है तो सुबह का खाना खाइए दबा के, बॉडी में एनर्जी आएगी, एनर्जेटिक रहेंगे, काम करेंगे, पसीना बहेगा, खाना हजम होगा और वो लगेगा बदन के अंदर। और दोपहर का खाना थोड़ा लाइट कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। यानी अगर सुबह में आपने 60% का, 100% तो नहीं खाना है, अगर 60% खाया है तो दोपहर में 40%, और नाइट में आप लाइक बेगर कहते हैं भिखारी की तरह खाना खाइए, और हो सके तो ना खाइए, कम ही खाइए, थोड़ा खाइए, खजूर खाइए, एकदम बिल्कुल मामूली 10% खाइए। एक ट्रायंगल है, ये जो कैमरे का जो ट्राइपॉड लगा हुआ है ना, ये उल्टा लगा हुआ है बिल्कुल। हम ये वाला शेप फॉलो करते हैं
कि ये सुबह ऊपर का जो हिस्सा पतला है, नीचे चौड़ा हो गया है, तो हम सुबह ब्रेकफास्ट ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल टोस्ट खाया, खारी खाया, चाय खाया, निकल लिए, है ना। और दोपहर में थोड़ा सा खाए, और रात में उसके बाद फिर जो है वो दबाते हैं पकड़ के, मुर्गा बकरा जो आया रात ही में चलता है, और रात भर डेकार लेते रहते हैं। तो सिस्टम उल्टा हो गया। उसको उल्टा करिए, सुबह खाइए, दोपहर में कम कीजिए, रात को और कम कीजिए। इंशाअल्लाह सेहतमंद रहने का ये बहुत ही नायाब नुस्खा है। तो मैं बात कर रहा था कि मुसलमानों के इलाके में क्या खुलते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट खुलते जा रहे हैं, और वहां पे लोग खाने के लिए रात भर बैठते हैं। आप मुमरा जाए, मोहम्मद अली रोड जाए, भिवंडी जाए, सारा माहौल आप जहां भी मुसलमानों की अक्सरियत है वहां जाइए, ये आपको जो है मिलेगा। हमें इससे निकलना है। हम अपनी रातों को रेस्टोरेंट होटल में न गुजार कर हम अपनी रातों को मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए गुजार सकते हैं, इल्म दीन के हुसूल के लिए गुजार सकते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहैसियत मुअल्लिम, आपने हर चीज को हमें सिखाया। सहाबा कराम का कोई भी मसला होता हुजूर के पास आते, और बहैसियत मुअल्लिम हुजूर ने अपनी एक जिंदगी गुजारी है। हुजूर की जिंदगी के कई गोशे, कई पहलू, और हर गोशे पर खिताब किया जाए तो एक बड़ा दफ्तर दरकार है, बड़ी बड़ी रातें चाहिए हुजूर के जो है वो एक एक गोशे पर बात करने के लिए। तो बहैसियत मुअल्लिम हुजूर ने जो इल्म दिया है लोगों को, और किताब व हिकमत सिखाया है। हजरत उमर जब कारोबार करते थे तो हजरत उमर के एक पार्टनर भी थे कारोबार में, हुजूर वो उन्होंने बारी मुकर्रर की थी कि एक दिन हुजूर के पास तुम रहोगे, एक दिन मैं रहूंगा, एक दिन कारोबार तुम करो, एक दिन मैं करूंगा, क्योंकि हुजूर जो भी फरमाएंगे वो मुझे बताना आकर के। और हजरत अबू हुरैरा जो 40 साल में जो सहाबा ने अपनी हदीसें नहीं ली, 10 साल में हजरत अबू हुरैरा ने ली। क्यों? वो हुजूर के दरवाजे से लगे रहते थे, हुजूर जो भी फरमाते उसे याद कर लेते थे। कई दिनों तक खाना नहीं खाया इल्म के हुसूल के लिए। और एक नारा भी दिया गया था मौलाना शरीफ से कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन आज हमने उस नारे को भी बदल दिया कि पूरी रोटी खाइए और बच्चों को जाहिल रखिए। तो इल्म की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों। ये वक्त नमाज का हो चला है। इन्हीं अल्फाज के ऊपर मैं जो है, बातें तो बहुत बाकी है, लेकिन अगर बातें करने लगेंगे तो नमाज का वक्त भी हो गया, उसके बाद फिर एहतमाम फिर खाने का भी है ना। हंस रहे आप लोग। तो फिर इंशाअल्लाह ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर है, न्याज है, आप खाइए बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज सब लोग पढ़ेंगे, जो बेवजू है वो वजू कर लें। आपको 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। सुन्नतें जो अदा करना चाहें वो सुन्नतें अदा